हेलो बच्चों, दिस इज़ थर्ड सेशन ऑफ रिवीजन फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट आज पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जब आपके पास जो नीडेड रेजिस्टेंस है वो नहीं है और कुछ और ही चॉइस अवेलेबल है, then the proper resistance or the desired resistance is obtained by combining them in the different types of combinations. So सबसे पहला टाइप आता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड टाइप इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन और थर्ड टाइप आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स को हम लोग बहुत बार हाइब्रिड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले टारगेट देख लेते हैं, व्हाई डू वी कंबाइन रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। विद द हेल्प ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, and with the help of mix or hybrid combination sometimes which is not achievable with the help of series or parallel, then we can get the desired value of resistance, whether it may be greater than the actual value or smaller than the actual value। मतलब दोनों ही केसेस में आप desired value को लेने के लिए मिक्स और हाइब्रिड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 रेजिस्टर्स। दिस इज़ R1, R2 एंड R3 एंड देयर फ्री एंड्स are connected to a battery. This is plus pole and it is minus pole, and let this battery supplies EMF equal to V. अब करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, so this is the current. When this current passes through this resistance R1, it creates a potential difference which is V1। अब ये सेम करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी V2, एंड सिमिलरली यहाँ से निकल कर करंट जब R3 में से पास होगी तो क्रिएट करेगी V3। तो एक्चुअल तीनों रेजिस्टेंसेस में से करंट सेम है, तो आपको ध्यान रखना है व्हेन एवर वी आर टेकिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, current flowing will be same. Okay, next V equal to V1 plus V2 plus V3। अब ये तीनों को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, so we can get equivalent series resistance which is denoted by the subscript S। तो यहाँ लिखा मैंने ओम्स लॉ से I into RS, then I into R1, I into R2, I into R3, तीनों में ओम्स लॉ लगा दिया because the current is same in the series combination। I is cancelled from both the sides, so what do we get? RS equal to R1 plus R2 plus R3। वाह क्या बात है, रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था। So we are using a trick for NEET or JEE for faster calculation. Suppose there are n resistors, each value is R, then overall resistance will be RS equal to R plus R up to n times. So answer will be n into R. This is time saving technique. Next I am taking parallel combination of resistors
So again, suppose we are taking 3 resistors. So let 3 resistors are connected in parallel combination. R1, R2, R3, and the whole assembly is connected to a battery of potential V plus minus. Current is always extracted, conventional current, from the positive pole of the battery. तो ये current गई I. Now this is the junction. आपको पूरे सर्किट में ये 2 जंक्शंस दिख रहे हैं. तो जैसे ही इस जंक्शन पर करंट पहुँचेगा, according to the resistor value, current will be divided into 3 parts. So let first part is I1, second I2 and third I3. अब I1 R1 ओम्स लॉ से क्रिएट करेगा V1, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज V1. I2 R2 will be creating V2. I3 R3 will be creating V3. But what is the lucky point over here? In parallel, बिल्कुल डीप कंसेप्ट है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑलवेज सेम, provided we can join their legs like this. So we can write it I equals to, at this junction we can apply Kirchhoff's current law, that is junction law. I1 plus I2 plus I3. Now for I we can take V divided by Rp, where Rp is the overall resistance, overall single resistance for the parallel combination. So this is V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V will cancel from both the sides and we get the relation as 1 upon Rp equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो बच्चों ये हम लोग 10th क्लास में भी कर चुके थे, बट इसको बोलने का वे कैसा रहेगा वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. द रेसिप्रोकल, इस पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स में गलती करते हैं, सो बी अलर्ट बाय दिस पॉइंट. द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. और यहाँ हमने एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो भी आंसर मिलेगा RP, ये एक ट्रिक ले सकते हैं हम. दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्ट टाइम सेविंग टेक्निक, कि जो भी आपको RP का आंसर मिलेगा, दिस विल बी लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक एग्जाम्पल समझा के देखते हैं आपको. सपोज दिस इज़ 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम. तो इन तीनों में से सबसे छोटा रेजिस्टेंस मीन्स लीस्ट कौन सा है? 2 ओम. बिल्कुल आसान आंसर. तो आपके पास जो RP का आंसर आएगा वो 2 ओम से भी कम आएगा. तो कई बार आपको कॉम्पिटिटिव में और MCQ सॉल्विंग में पूरा डेरिवेशन ना करके सिर्फ इस स्टेटमेंट को और इस जोरदार ट्रिक को बहुत ध्यान में रखना है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप चेक करेंगे, इफ़ देयर आर n रेजिस्टेंसेस and each is of value R, then the equivalent resistance will be equal to R by N. We can take one example. Suppose the question is 10 resistances, each of value 90 ohm are connected in series, and then
इन पैरेलल। सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सेकंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस टू द पैरेलल रेजिस्टेंस। ये जो पार्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेन पार्ट है और आपको पूछा जा सकता है और मीन्स एनी वन क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पैरेलल इक्विवेलेंट अपॉन सीरीज इक्विवेलेंट। सो इट्स वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ टाइम सेविंग टेक्निक एज द आंसर फॉर आर एस विल बी n इंटू आर। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं 10 एंड आर ईच की वैल्यू है 90, तो दिस इज 10 इंटू 90 मीन्स 900 ओम। देन सेकेंड इज आंसर फॉर पैरेलल, ये हम लोग देख चुके हैं, दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक। सो इट इज़ आर बाय एन, सो आर इज 90 and number of resistors are 10, so answer will be 9 ohm. Third, we have to find out RS divided by RP। तो अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ नहीं पुट करते हैं, सपोज़ आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो यू कैन पुट इट n into r divided by r by n. This r will cancel and it is equal to n square. And you should always remember that series resistance increases the overall resistance. So whenever RS is in the numerator, it is directly proportional to n square and RP is directly proportional to 1. So putting the value of n, this will be 100 because 10 square हो गया। और अगर आपको पूछा हुआ है RP upon RS, तो ऑब्वियसली पैरेलल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज द वैल्यू, सो इट इज़ 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर मीन्स इट इज़ 1 बाय 100। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, अगर आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो दे आर नेवर डिफ़िकल्ट। वो तो सिर्फ फिज़िक्स का फियर बनाया हुआ है सब ने। चलिए अब करते हैं स्टार्ट अपना फेवरेट काम, that is numericals based on combination of resistors. Right, first problem as two resistances of 16 ohm and 4 ohm are given. We have to find the minimum and maximum resistance combining both. As we know, solution के हिसाब से आप थोड़े से अपने प्री कंसेप्ट्स बनाएं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा सीरीज रेजिस्टेंस इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, and parallel combination is used to decrease the resistance and it is the equal to the sum of the reciprocals. Okay, ऐसे आप वैल्यूज़ ले लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जो आंसर मिलेगा ओवरऑल that will also be 1 upon the equivalent resistance because 90% students commit mistake only in this last step. तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस का पैरेलल का आंसर निकालना है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस मेथड से ना निकाल कर नीट और जेई में आप डायरेक्टली ऐसे निकालो, बिकॉज दिस इज़ वेरी ग्रेटफुल टेक्निक, प्रोडक्ट अपॉन सम। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में ही ट्रायल करके देखते हैं। तो द प्रोडक्ट इज़ 16 इंटू 4 एंड द सम इज़ 16 प्लस 4। देखो कैसे फटाफट आंसर आता है। इसको आप लिखो मत कि दिस इज़ 64, जस्ट लेट इट बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। नाउ दिस इज़ 20, सो इट कैंसल्ड 5 ज़ा, तो आंसर विल बी 3.2 ओम, क्योंकि हमें लास्ट स्टेप में मिला 16 डिवाइडेड बाय 5। अब
मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे मिल सकता है हमें? सीरीज़ में, क्योंकि ऐड कर देते हैं आप सीरीज़ में. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज़ जस्ट इक्वल टू R1 प्लस R2. So this is 16 ohm plus 4 ohm. So answer will be 20 ohm. So this is the value of maximum resistance and this is the value of minimum resistance. अब आप रिकॉल करें वो पॉइंट जो मैंने जस्ट अभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था कि इन पैरेलल द आंसर ऑब्टेन्ड इज़ लेस देन द लीस्ट. तो इन दोनों में से लीस्ट आंसर है 4. तो आपको पैरेलल में जो आंसर मिलेगा वो 4 ओम से भी कम होगा. इसके लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा. ऐसा कोई भी सिंगल ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो श्योरली यू कैन चेक एन आंसर विच इज़ लेस देन द लीस्ट. नाउ टेकिंग नेक्स्ट न्यूमेरिकल एज, नोट डाउन द प्रॉब्लम. दिस इज़ फर्स्ट रेजिस्टेंस, इट इज़ सेकेंड, and this one is third. I think this is examiner's favorite question. Now this is the first connection and this one by covering 2 resistors is the second connection. ये remove कर देंगे आप. Now this point is A, so ये point भी A होगा और ये point है आपके पास, इसकी naming suppose हमने कर ली 1 and its naming is 2 and since this point is B, ये दोनों shorted हैं, just एक wire है, तो ये point भी आपके पास में B होगा. Now we have to find the resistance between the terminals A and B. This is our question. ये बहुत favorite question होता है एग्ज़ाम्स का. तो assume करते हैं और आपको given है 3 ohm, 6 ohm and 9 ohm. Suppose इस टाइप के वैल्यूज़ हमें गिवन है and we have to find the overall resistance between A and B. Means what is the saying of examiner कि अगर आप इसको पूरे को रिमूव कर देते हैं तो इसके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट पॉइंट्स, देखो आप फिगर देखें ध्यान से, पॉइंट्स A and 2 आपस में कनेक्टेड हैं. सो वी कैन से पॉइंट A and 2 आर सेम पॉइंट्स. नाउ पॉइंट 1 एंड पॉइंट B आपस में कनेक्टेड हैं, तो वी कैन से पॉइंट B एंड पॉइंट 1 आर सेम पॉइंट्स. व्हाट इट? सो आपके पास फिगर कैसा कनेक्ट हो सकता है? दिस इज़ पॉइंट A एंड इट इज़ पॉइंट 2. चेक इट अगेन. Now this is point B और इसी से कनेक्टेड है point 1. तो जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो 3 ohm है that is connected between A and 1. So this is 3 ohm connected between A and 1. Now 6 ohm is between 1 and 2. And as resistance has no polarity, means no plus minus is preferred, so आप इसको 1 2 भी मान सकते हैं. तो this is 6 ohm and 9 ohm is connected between 2 and B. तो 2 and B, तो B ही 1 है, मतलब उनके रूप हैं, बस नाम अलग अलग हैं. सो दिस इज़ 9 ohm. अब फिर से आप ट्रिक लगाएंगे. क्या ट्रिक है कि आपके पास इसको पूरा रिप्लेस करके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस. सो बच्चों सर्च करो कौन सा लीस्ट रेजिस्टेंस है? 3 ohm. वेरी गुड. सो दिस इज़ लेस देन द 3 ohm. अब आपको इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, मैंने जस्ट अभी आपको इसका एक तरीका बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम. बट वॉट मैनी चिल्ड्रन डू, वो जस्ट इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं और नीचे इन्हीं का सम ले लेते हैं. तो एब्सोल्यूटली रॉन्ग, क्योंकि आपको ऊपर तो तीनों का प्रोडक्ट लेना है, दैट इज़ 3 × 6 × 9, लेकिन नीचे आपको 2 के प्रोडक्ट का सम लेना है. तो सबसे पहले सपोज़ मैंने 3 के नीचे लिया इन दोनों का प्रोडक्ट 6 × 9 इन द ब्रैकेट प्लस
अब 6 के नीचे लिया 3 इंटू 9, सो दिस इज़ 3 इंटू 9 प्लस नेक्स्ट मैंने 9 के नीचे लिया 3 इंटू 6। तो आपके पास क्राइटेरिया तो सेम सक्सेसफुल हो रहा है, प्रोडक्ट अपॉन सम। सो दिस इज़, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में निकालेंगे नहीं आप, डिवाइडेड बाय 54, साइड में लिखती हूँ मैं, 54 प्लस 27 प्लस 18, क्योंकि ये सब काम आपको कॉम्पिटिटिव में साथ साथ में करना है। नाउ अप्लाई द वैदिक मैथ, 11 प्लस 18 इज़ 19, 1 डॉट 6 एंड 3 9। तो जल्दी से हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आप ऐसे कैंसिल कर देंगे, दिस इज़ 11, सो आंसर इज़ 18 अपॉन 11, means answer is equal to about, this is 1.6 ohm. So we can see again that this answer is less than the least, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता था कि 3 ohm से कम होना चाहिए आंसर। Now question number 3 is, this is given to us, each value is R, but this is point A and it is point B. Again we have to find the resistance between points A and B. तो आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसके बीच के रेजिस्टेंस को आप बाकी रेजिस्टेंसेस के साथ मिक्स करने की गलती कभी भी ना करें। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है A एंड B के बीच का रेजिस्टेंस, तो कुछ बच्चे यहाँ कर देते हैं, इसको इसके साथ सीरीज़ में ले लिया। नेवर, आप इसको लास्ट तक छुपा के रखो और बाकी के रेजिस्टेंसेस को देखो। तो दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सपोज़ मैं इस वायर को यहाँ से खींच के स्ट्रेट कर दूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दीज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब ये तीनों सीरीज़ का आंसर जस्ट ऐड होकर आपको क्या मिल जाएगा, 3R। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ न्यू फिगर, कि आपके पास A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, और जो ये मुझे ऊपर रेजिस्टेंस मिला, दिस इज़ इक्वल टू 3R। नाउ दीज 2 आर इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा वो लेस देन द लीस्ट होगा। तो इन दोनों में से लीस्ट है R, तो मुझे आंसर R ओम से कम मिलना चाहिए। अब मैं ट्रिक लगाऊंगी, RP इज़ इक्वल टू, ऊपर आएगा प्रोडक्ट क्योंकि ये पैरेलल में है, और नीचे आएगा सम। तो ऊपर प्रोडक्ट में आया 3R इंटू R, और नीचे सम में आया 3R प्लस R विच इज़ इक्वल टू 4R। R cancel, so this is equal to 3R by 4. So obviously this is 0.75 R, so it is less than R. ठीक है, ये जो वैल्यू आई less than the least आ गई। Now next numerical is find the potential difference across 5 ohm resistor in the given network of resistances। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी कॉम्पिटिटिव्स में, नीट जेई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीडी निकालने के लिए कभी भी आपको अप्लाई करना होता है ओम्स लॉ। तो जिस रेजिस्टर के थ्रू आपको पीडी निकालना है, सबसे पहले आपको उसके थ्रू निकालना पड़ेगा करंट। ठीक है, आई निकाल लेंगे आप, करंट निकाल लेंगे। जैसे ही आपको करंट मिल जाएगा, आप उसमें पर्टिकुलर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी गिविंग यू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई एम ड्राइंग द सर्किट डायग्राम। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 6 ओम, पैरेलल लगा हुआ है 12 ओम, साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम
and this all combination is connected to a cell of 12 वोल्ट। ये हमारे पास फुल सर्किट डायग्राम आ गया। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के कॉमन स्टेप्स में से पहला स्टेप आएगा कि आप इस पूरे डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। फिर उसके बाद आप करंट निकाल लें। तो करंट का फॉर्मूला आएगा टोटल वोल्टेज। सो पूरे सर्किट में सिंगल वोल्टेज वैल्यू गिवन है, तो दिस इज़ 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग करंट एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। तो सबसे पहले ये दोनों देखेंगे। अब ये एक क्वेश्चन अगर आपको नीट और जेई में आ जाता है तो आपको टाइम सेविंग टेक्निक से करना है। तो देखेंगे जल्दी जल्दी, 6 × 12 एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन 6 + 12 को डायरेक्ट लिख देंगे 18। तो ये कैंसिल होकर आया 3 एंड दिस इज़ 4। तो इसका पूरे का आंसर कंबाइन होकर मिला 4 ओम। नाउ दिस 4 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो आपको फर्स्ट अपर ब्रांच का आंसर मिल गया 4 ओम + 4 ओम, क्योंकि सीरीज़ में ऐड होते हैं 8 ओम। और इसका भी आंसर मिला 8 ओम बिकॉज 3 ओम + 5 ओम। सो दिस आंसर इज़ ऑल्सो 8 ओम। अब आपके पास 8 and 8 पैरेलल में है, तो अगेन टाइम सेविंग टेक्निक फॉर पैरेलल लगाएंगे R/N। सो दिस इज़ 8 एंड ऐसे 2 सेटअप हैं आपके पास। सो 8 और 8 इन पैरेलल का आंसर आया 4 ओम। तो हम लोगों ने यहाँ R इक्विवेलेंट के प्लेस पर पुट कर दिया 4 ओम। सो दिस इज़ I = 12/4। तो आंसर आया 3 एम्पियर। इट मीन्स यहाँ से निकलती है 3 एम्पियर करंट। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ से निकलती है 3 एम्पियर करंट, पहुँचती है इस जंक्शन पर। इस जंक्शन में जाकर उसको अपर ब्रांच भी 8 ओम की मिलती है एंड द लोअर ब्रांच इज़ ऑल्सो 8 ओम। तो करंट डिवाइड हो जाती है 2 इक्वल पार्ट्स में, 1.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर। ओके, अब हमें कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू पीडी निकालना है ये चेक कर लेते हैं पहले, 5 ओम के थ्रू। तो हम लोग फालतू टाइम ना वेस्ट करके सीधे 5 ओम के पास चलें। 1.5 3 ओम में से निकलकर इस पर जैसे ही पहुंचेगी तो 1.5 ओम का प्रोडक्ट, 1.5 एम्पियर का प्रोडक्ट हम 5 ओम के साथ ले लेंगे एंड दिस विल बी गिविंग अस V across 5 ohm equals to I into R. So this is 1.5 into 5. तो आंसर विल बी 7.5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगा 7.5। नेक्स्ट टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंसेस नेटवर्क जो आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ LOS। LOS मीन्स द फुल फॉर्म इज लाइन, O means off and S means symmetry. So this method is called as line of symmetry method. इसमें ये जो line of symmetry है वो आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है and generally this line of symmetry will be perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से करके देखेंगे अभी। टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज़ करंट जा रही है हॉरिजॉन्टल तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री चूज़ करेंगे वर्टिकल, एंड इफ़ द करंट इज़ गोइंग वर्टिकल देन यू कैन चूज़ लाइन ऑफ सिमेट्री एज हॉरिजॉन्टल। और जैसे ही आपने लाइन ऑफ सिमेट्री चूज़ कर लिया तो उस पॉइंट पर रेजिस्टेंसेस के कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस को ब्रेक करके यू कैन ड्रॉ अ सिमेट्रिक नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल
I am taking an example. This is point A and the circuit diagram is given as, आप मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे, B point, see this is the circuit diagram given to us and each value is of resistance R. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले आप ये सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन. So the question is find equivalent resistance between points A and B. तो जैसे ही आपको पॉइंट्स पता चल जाते हैं, आप उनके बीच में अज्यूम कर लेंगे कि देयर इज़ अ वोल्टेज सोर्स. नाउ करंट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. तो यहाँ से निकलती है करंट, A से B की तरफ जाती है. तो जहाँ से आप करंट ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर आपको चूज़ करना है LOS. तो सपोज़ मैंने LOS को इस तरह से ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, ये बन गया मेरे पास LOS, दैट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री. सो सबसे पहला स्टेप आया आपके पास ड्रॉ करंट. स्टेप 1 आएगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए. सबसे पहले आप करंट ड्रॉ कर लें. करंट कहाँ से ड्रॉ करेंगे आप? जो दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में आप एक इमेजिनरी बैटरी लगाएंगे, करंट को ड्रॉ करेंगे. अब स्टेप 2 आएगा आपके पास ड्रॉ LOS. LOS ड्रॉ करते हैं आप करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर. जैसे करंट जा रही है हॉरिजॉन्टल, मैंने चूज़ किया है LOS को परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोल दिया LOS. अब LOS जिस जिस पॉइंट से जा रहा है वहाँ पर सारे पॉइंट्स को आप मान के चलेंगे कि दे आर एट सेम पोटेंशियल. इफ़ द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू देम. तो आप उन पॉइंट्स के कनेक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं. तो सपोज़ मैंने इस पॉइंट के कनेक्शंस को, न्यू सर्किट डायग्राम भी आप मेरे साथ साथ में बनाएंगे. दिस इज़ पॉइंट A, स्ट्रेट वायर, then resistance R and the outside external point is B. अब नेक्स्ट लिया हम लोगों ने इसके ऊपर इस पॉइंट से, दिस इज़ R, it is R and this is also R. So R, 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 R. और यहाँ से जो हमने कनेक्शन ब्रेक किया था इस टाइप का डायग्राम आ गया. दिस इज़ R, R. नीचे भी सेम ऐसा ही डायग्राम, क्योंकि नाम ही है सिमेट्रिक मेथड. और यहाँ दो रेजिस्टेंसेस जिनके कनेक्शंस हम लोगों ने ब्रेक किए हैं. सो दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज़, तो इट्स आंसर इज़ इक्वल टू 2R. These two resistances are in series, answer is 2R and this is R. अब हमारे पास न्यू डायग्राम आया. R is in parallel to 2R, R is in parallel to 2R. So पैरेलल का आंसर निकालने के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम, तो दिस R into 2R divided by their sum is 3R. R cancel, so the answer is 2R by 3 and this answer is also, total answer is also 2R by 3. Total answer 2R by 3. So we can draw new diagram because रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन काफ़ी पेशेंस का काम होता है.
आपको बार बार रीड्रॉ करना पड़ता है. सपोज दिस क्वेश्चन इज़ फॉर नीट और जेई, सो देयर इज़ नो नीड टू रीड्रॉ द डायग्राम. एक ही डायग्राम में आप पूरा कचरा 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 करके आंसर निकाल सकते हैं. बट एज्यूम दिस क्वेश्चन इज़ फॉर बोर्ड, जहाँ स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, तो आपको बार बार डायग्राम्स को रीड्रॉ करना है. सो मेकिंग न्यू डायग्राम. पॉइंट ए, this total resistance, see this total resistance will be 2R. so middle में हम लोग बना लेंगे 2R, and this is point B, R, 2R by 3 and R, 2R by 3 and R. This is also R, 2R by 3 and R. Now these three are in series. तो सिंपलेस्ट वे में जाएंगे, क्योंकि अगर आप नीट और जेई के लिए कर रहे हैं तो आपको टाइम सेव करना है. ये हो गया 2R प्लस 2R बाई 3, बिकॉज ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा. दीज 3 आर इन सीरीज. सो पहले ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं. दिस आंसर इज़ 2R, और अब ये इसके साथ सीरीज़ में हो गया, तो यू कैन ऐड देम लाइक दिस. 2R प्लस 2R बाई 3 विल बी, दिस इज़ 3 2s are 6, सो इट इज़ 8R बाई 3. तो ये टोटल रेजिस्टेंस आया 8R बाई 3, और ये भी टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सिमेट्रिक हैं तो आपको हर बार न्यू आंसर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो 8R बाई 3. अब फिर न्यू डायग्राम बनाया. ए, बी, 2R, ऊपर है 8R बाई 3, और नीचे भी है आपके पास 8R बाई 3. नाउ अगेन दीज 3 आर इन पैरेलल, बट उसमें से ये दोनों सेम हैं, तो इनकी वैल्यू को आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं. हाफ हो जाएंगे ये. So 8R by 3 is in parallel with 8R by 3 will be leading the result as 4R by 3. So again new diagram. A, B, 2R ये सेंटर वाला, और इसके साथ एक पैरेलल में 4R by 3. Now how we take the answer for parallel combination? In short, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे सम, और एक और ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो आंसर आएगा वो लेस देन द लीस्ट आएगा. तो इन दोनों में से लीस्ट रेजिस्टेंस है 4R बाई 3, तो आपको जो भी वैल्यू मिलनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 4R बाई 3. सो जस्ट कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट आंसर बिटवीन A एंड B. ऊपर प्रोडक्ट एंड नीचे सम. See this is 6R plus 4R means it is 10R, और ऊपर तो हम एज इट इज़ लिखते हैं बिना कैंसिल किए हुए. तो ऊपर कैंसिलेशन नहीं किया आपने, और नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फॉर टेकिंग LCM. Now 3 3 cancel, R cancel, so it is RAB equal to 8R divided by 10, cancelling by 2, this is 4R by 5. बहुत बढ़िया. लेस देन द लीस्ट, इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर विल बी, दिस आंसर इज़ लेस देन द लीस्ट. See, this is again next question. I have pre-drawn the diagram to save the time. Now again we have to find the resistance between points A and B. So let's assume, I am not connecting the battery, let's assume there is a hypothetical battery connected between the points A and B, where positive pole of the battery is connected to point A. So current will be going in the direction A to B. Current is going in the direction A to B. So we can draw LOS, that is line of symmetry,
in the perpendicular direction. So to better explain, first naming the diagram, let's C, D, E, F, all nodes, G, and this is H. Now suppose LOS means line of symmetry is passing through DG. So all the resistances present on line of symmetry can be neglected directly, because the points which are situated on line of symmetry are considered as the points of equal potential. And as we know that there is no current between the equipotential points, so as these resistors are physically present, but there is no significance of the presence of these two resistors. Hence assume that these two resistors can be neglected easily because they are presented on LOS. So we can make one more time saving technique. Resistances which are presented directly on LOS can be neglected to solve the equivalent resistance for the networks. So let's redraw the circuit diagram. So the diagram is redrawn taking two resistors in parallel combination and neglecting the resistances on LOS. So taking these two resistance, equivalent resistance as R by 2, and this is again R by 2. These two are in series, R. So this will be making 2R, and as it is a symmetric network, so downward branch will also be making 2R. So we can again redraw the diagram. So diagram again drawn is A, upward 2R, middle R, because these R by 2 will be connected in series making R, and the most bottom branch is also 2R. Now 2R, R and 2R are in parallel. So first, for the sake of convenience, we can take these two. This will be giving us R. Now again new diagram is R. So the net resistance between A and B is R by 2. And if the value of resistance is given to us, suppose in the question R is given as 4 ohm, then net answer will be 4 by 2, that is 2 ohm. So in this way we can draw the resistance complicated circuits, and by taking LOS perpendicular to the direction of current, neglecting resistances present directly on LOS, we can convert a very complicated circuit into the simple circuit. So let's meet next time. Thank you for watching. Happy learning.